गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा सुनाई दे रहा साफ? गुड मॉर्निंग सर। गुड यस मॉर्निंग। सर। ओके जी, ओके। ज्वाइन हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड डियर्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके जी बेटा 9-10 हो गए अपने। आप स्टार्ट करते हैं। तो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ। 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। जो पेपर पैटर्न आएगा वो मतलब क्वेश्चन 2 नंबर दे, 1 नंबर दे MCQ क्वेश्चन वगैरह जो पैटर्न रहेगा वो एक समान रहेगा। आप स्टडी करते हैं। सब तो पहला केमिस्ट्री का जो पैटर्न रहेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बेटा थ्योरी का जो पेपर होएगा साडा ये तो 70 नंबर का आएगा केमिस्ट्री का। और ਜਿਹੜਾ पेपर है ये मतलब सैल्फ स्कूल ही होएगा, ਅਸੀਂ ही तैयार करना है +1 ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 25 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਕੁੱਲ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ 1 ਤੋਂ 20 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਉਹਦੇ 20 ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, 20 ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਬ ਪਾਰਟਸ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ 20 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈਸਨ, ਕਿਸੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ 1 ਵਰਡ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ MCQ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣੇ ਆ, ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ 1 ਵਰਡ ਜਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 20 ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ 2 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟੋਟਲ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ 14 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 to 15, 9 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ 16, 17, 18, 3 ਕੁਐਸਚਨ 16 ਨੰਬਰ, 17 ਨੰਬਰ, 18 ਨੰਬਰ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ, 17ਵਾਂ ਤੇ 18ਵਾਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ और मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी असी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन की भी अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है ना। दैन इस तरीके नाल वो देखो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 36% ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 44%, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 20 ਐਂਡ ਟੋਟਲ 100%। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਭੀ 2-3 ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾइंड ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਟਮ ਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਸਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਰਹੇਗਾ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਦੇਖੋ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਸ टाइप के क्वेश्चन आने हैं। MCQ क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के या 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो वो असी अगे देखेंगे। हर एक लैसन वाइज स्कीम बनाई हुई है भी किस लैसन चों किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो इत्थे 6 नंबर का सानू बेसिक कंसैप्ट चों मिल रहा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चों सानू 5 नंबर का मिल रहा।
क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक, देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, ये 10th लेवल तक ਅਸੀਂ पढ़ा है भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वेला, ये 5 नंबर का ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन ਆਣਗੇ। ਦੈਨ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल 4 नंबर का, ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ PDF ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਲੈਸਨ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਲੈਸਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ 10 4 14 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਸਨ। 14 ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੇਖੋ 2 ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਗ मार्क्स वाले आ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला एक लेसन है, सबसे बड़ा है लेकिन सबसे इजी रहेगा, इसको देख के डरना नहीं है क्योंकि आप 10th क्लास के अंदर अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला कार्बन कंपाउंड वाला लेसन करा है, ठीक है ना। तो इतने कार्बन कंपाउंड वाला लेसन तो बेस तो वही रहेगा, थोड़ा सा इलैबोरेट हो जाएगा, थोड़ा असी फंक्शनल ग्रुप में डिटेल ना पढ़ लाँगे, ठीक है ना, कंपाउंड किमें बनते हो अच्छे तरीके करा लाँगे। तो ये 7 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हाइड्रोकार्बन, ये दोनों लैसन जोड़े है मिलते जुलते रहेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक के 7 नंबर के टोटल थ्योरी जी है 70 नंबर की थ्योरी रहेगी। तुसी अगर इस गल वाल ध्यान दिओ भी स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये साडे लई सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी लैसन च असी ब्लाइंडली स्टडी ना करिए। ब्लाइंडली स्टडी टू मीन पहला लैसन सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा म्यूट करो अपने आप ਨੂੰ, नॉन वॉइस। सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखो जिमें कि एक लैसन है पहला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 नंबर के क्वेश्चन, एक कालम जो बनया 1 नंबर के क्वेश्चन वाला, 1 नंबर का किस तरह का क्वेश्चन आएगा, नमैरिकल क्वेश्चन आएगा लेकिन MCQ, मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट आंसर दिते होंगे, असी एक कोई टिक करना होएगा, मतलब एक क्वेश्चन तो इस लैसन चो MCQ का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का थ्योरी का रहेगा, 3 नंबर का एक नमैरिकल भी सानू ये करना पेगा। तो मतलब असी इस इन्हां चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हर एक लैसन की तैयारी करनी है। मतलब ये आ कि लैसन च अही कंसैप्ट तो पढ़ लांगे, पढ़न तो बाद जो तुहानू असाइनमेंट देवांगे असी वो इस दे अनुसार ही देवांगे जिस तरीके नाल तुहाडी ये स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। तो ये स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वाली जो भी असाइनमेंट तुहानू मिल रही आ, तुसी उसनू कापी ते राइट डाउन करते रहना क्योंकि पेपर जो बनेगा तुहाडे अपने ही स्कूल चो बनना है। तो पेपर जिहड़ा हैगा वो तुहानू उन्हां क्वेश्चन दे विचों ही आएगा। ये सारा जिहड़ा स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन है मैं कल्ला कल्ला पढ़ के नहीं सुनावांगा, ये तुहानू मैं PDF बेटा सेंड कर दांगा, इसनू तुसी अपने कोल रखना। कोई भी लैसन स्टार्ट करते हैं असी उस विच जरूर देख लेना, लैसन के चाहे फस्ट पेज पर ही लिख लेना क्वेश्चन आंसर करने तो पहला कि इस लैसन चो इन्ने नंबर का काम करना है असी, और इस टाइप का जोड़ा मैटर है वो कर रहे हैं। ओके, दैन असी सब तो पहला बेटा स्टार्ट करांगे पहला लैसन। तो पहले लैसन दे विच जो है साडे कोल बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर क्या कुछ करांगे, ये नाल ये भी साडे कोल थोड़ा सा इत्थे इलैबोरेट करता। तुसी शायद मैटर बारे पिछलियां क्लासां 'च पढ़िया होवे, लाज ऑफ केमिकल कंबीनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंसैप्ट ऑफ एलीमेंट्स, एटम मॉलिक्यूल्स, ये गल्लां असीं हुण जो वीडियो तुहाडे नाल मैं शेयर कर रहा ना वो ये बेसिक टॉपिक्स है, ये तुहाडे नाल सारियां गल्लां जिहड़ियां इत्थे कर रहे हैं। लैसन वाइज जो असीं पढ़ांगे वो असीं इस लैसन नूं ये सारे टॉपिक जिहड़े कवर करते हुए करांगे। ओके, तो ये एक जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सीगा तुहाडे लई, और ये PDF मैं तुहानूं सेंड कर दांगा। इस PDF दे नाल तुहानूं सिर्फ पता लग जाएगा कि साडा सिलेबस कितना गया। बेटा जो नॉइस कर रहे हो ये म्यूट करो, अपने आप नूं म्यूट करके रखो। हाँ जी, इस दे विच प्रैक्टिकल भी तुसी बेटा करने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है कि प्रैक्टिकल तो स्कूल च आ नहीं रहे, स्कूल च नहीं आ रहे, लेकिन +1 और +2 दे विच प्रैक्टिकल करने बहुत जरूरी है। तुहानूं प्रैक्टिकल की कॉपी लगाउण नूं किया जाएगा, और कॉपी लगा के देखो प्रैक्टिकल स्कीम जिहड़े हैगे आ 25 नंबर के सानूं प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलने हैं, तो कॉपी मेनटेन करनी पड़ेगी। तो किस तरह करांगे असीं सारे प्रैक्टिकल, किवें कोई एक्सपैरीमेंट नूं कीता जा सकता है जो लैब तो बिना कीता जा सकता होवे, उस दे लई बेटा मैं ना एनीमेशन बना रखे। वैसे हर एक प्रैक्टिकल का एनीमेशन
ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਨਰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। तो अपने अप्रैल मंथ तो वैसे अपना सिलेबस शुरू होना सी। अप्रैल मंथ ਦੇ ਔਰ ਮਈ ਮੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਈ ਮੰਥ ਤੱਕ 4 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 25 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, तो इस PDF ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਕੇ ਵਿਸਰਾ मतलब कि ਫੂਡ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸਿਡਿਕ ਰੇਡੀਕਲ, ਬੇਸਿਕ ਰੇਡੀਕਲ, ਲੈਡ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। तो मैं पूरी कोशिश करांगा कि प्रैक्टिकल नू एनीमेशन के नाल तुहानू अच्छे तरीके नाल समझावां, तुहानू प्रैक्टिकल पूरा अच्छे तरीके नाल पता लगे। क्योंकि यही प्रैक्टिकल तुसीं नैक्सट अगर कॉलेज से जाने हो तो यही प्रैक्टिकल तुहानू उत्थे करन नू मिलणगे। लेकिन बेसिक अगर क्लीयर नहीं होएगा तो कॉलेज लैवल 'ਚ तुसीं अच्छे तरीके नाल नहीं कर सकोगे। तो प्रैक्टिकल ते बेटा मैं कंसनट्रेट जरूर करांगा। ठीक है जी, ये वाला तो बेटा सारा कुछ तुहानू मैं पा दांगा। कि प्रोजैक्ट जिहड़ा तुसीं तैयार करना है कोई वो फाइनल पेपर के लिए होएगा कि वो जाके असीं नेड़े दसंबर दी छुट्टियां 'ਚ जाके ना कोई तुहानू प्रोजैक्ट असाइनमेंट दे दांगा। वो 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के असीं प्रोजैक्ट असाइनमेंट देंगे कि 5 बच्चों को एको किस्म का प्रोजैक्ट जिहड़ा तुसीं रल मिल के ही बनाना है। तो वो प्रोजैक्ट असाइनमेंट अभी लंबी बात है, इसनूं भी देख लांगे जी। ये सारियां गल्लां तो बाद ये तुहानू PDF बेटा सेंड कर दांगा। लेकिन आज जो असीं करना सी असी अज कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का लेसन। हाँ जी बेटा, मैं सुनाई दे रहा सबनों? Yes, sir. ओके जी, ओके Yes, sir. ठीक है बेटा। अज असी ना तुसी देखो कि तुसी पिछलियां क्लासां दे विच पीरियोडिक टेबल पढ़ते आए हो। तुसी मैनूं कोई बच्चा ये दस सकदा भी पीरियोडिक टेबल दे किसी नूं पहले 10 एलीमेंट याद है हुण? किसी नूं याद? Yes, sir. हाँ बोलो फिर बेटा, किन्ने केड़े केड़े कोई 5 के बोलो के दिखाओ। Sir, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, वेरी गुड, nitrogen, oxygen, fluorine. ठीक है जी, गुड। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी। चलो इस तरीके ना मतलब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ 10, ਕਿਸੇ ਨੇ 20, ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। तो पीरियोडिक टेबल ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ सा ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ सा ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਲਰਨ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲਗੂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਤੇਲਗੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇਲਗੂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ABC ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਲਈ
तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु अल्फाबेट सीखे, तेलुगु लैंग्वेज बना ली। दैन असी इसनूं अच्छे तरीके नाल जानते हैं। ABC अल्फाबेट जिहड़ा भी सीख लैंदा बच्चा वो इंग्लिश लैंग्वेज नूं जान लैंदा। इंग्लिश लैंग्वेज नूं जानन दे लई वो ये नहीं कदी कर सकता कि अल्फाबेट नूं बिना पढ़े इंग्लिश लैंग्वेज जान ले, ठीक है ना, कदी नहीं होएगा। इसे तरीके नाल कहते कि अगर असी कैमिस्ट्री नूं एक भाषा समझिए, जो केमिस्ट्री है एक लैंग्वेज है, अगर केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है तो केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट क्या है, तो केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वाले सारे जड़े ए एलिमेंट। तो मतलब कि केमिस्ट्री सीखण लई केमिस्ट्री की ABC ये पीरियोडिक टेबल है। तो ABC नहीं सीखांगे तो असी कभी नहीं कह सकांगे कि असी केमिस्ट्री पढ़ रहे हाँ या केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है ना। अगर सानू साडे पीरियोडिक टेबल का नहीं पता होएगा तो सानू इस पीरियोडिक टेबल की पहले तो प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए की है, किमें बनया, कित्थों बनया, एलीमेंट्स नूं अगर स्टडी करना है तो किमें स्टडी करना है, इत्थों असीं कोई एलीमेंट लभना है तो किमें लभना है। तो असी थोड़ा सा इनू जान लैंदे हां अपने केमिस्ट्री लैंग्वेज नूं जानन लई अल्फाबेट पीरियोडिक टेबल। देख रहे हैं असी कि जिमें कि एक इंसान की ग्रोथ जो है बचपन तो लैके जवानी तक फिर बुढ़ापे तक हुंदी रहिंदी है। जिमें एक इंसान की अगर ग्रोथ हो रही है इस तरीके नाल साडे पीरियोडिक टेबल की भी ग्रोथ हुई है और अगे भी हो रही है। और तुसी बच्चे आने वाले जो जनरेशन है इन्होंने इस ग्रोथ नूं अगे तक होर लेके जाना। देखो 1800 ईस्वी विच 31 एलीमेंट इस सारी धरती विचों, आकाश विचों, पानी विचों सारे विग्यानियों ने मिल के सिर्फ 31 एलीमेंट नूं ही लभ्या सीगा। वो 31 नूं ही जानते सी, वो सोचते सी 31 तो आले दुआले कोई होर दुनिया है ही नहीं, बस 31 ही है। बट नैक्सट जनरेशन आई, उन्होंने आके 1865 तक 65 सालों के विच इसनूं 63 तक पहुँचा दिता। 1865 तक वो कहते कि नहीं जेडे एलीमेंट्स है ना वो 63 है। फिर उन्होंने पता लगन लग गया नहीं अगली जनरेशन आके कुछ होर भी फाइंड आउट कर सकती है। पर असीं ज़्यादा लंबा नहीं जाने, अज की जनरेशन तक हुण तक ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਐਟਮ ਉਹ 114 114 ਨੌਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਈਜ਼ਲੀ ਦੇ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 114 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭ ਹੀ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਿਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। तो फिर की किया गया जी, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स? एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल एलिमेंट एट टाइम। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ understand properties of element easily, they are classified systematically। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ। 18 ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਸੀਂ 1A 1B ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 18 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਉਹ 18 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹ ਲੀ ਨਾ करे रब से फरियाद, ह ली ना करे रब से फरियाद। ओके, तो मतलब याद करने लिए ये नहीं है कि बाद च लिखण वेले भी असीं इहनूं ह लीना ही बोलना है। ह ਆਪਾਂ जानना, ह मतलब हाइड्रोजन, लीना मतलब लिथियम, ठीक है ना। ह ली ना करे रब से फरियाद। ओके, देन दूसरा जिहड़ा ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ, ਬੇਰੀਅਮ ਐਂਡ ਰੈਨਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੰਗੇ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਬਾਪ ਰੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। याद रखने की तरीका है कोई अपने हिसाब नाल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है ना। बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। दैन तीसरा जिहड़ा ग्रुप है, वो तीसरा इन्हां विचों 10 एलीमेंट्स की जगह छड्ड के अगे जाके बनिया तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। then कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये लैटिन भाषा का वर्ड है, टिन बोलते हैं लेकिन स्टेंशियम मैनू लिखा जाता टिन, ठीक है ना। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। then नेक्स्ट ग्रुप में देखो तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। म्यूट करो बेटा अपने आप नू। आगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम एंड पोलोनियम। हाँ जी, तुसी अपने आप नू म्यूट रखो पहला। उस से टीपो, ओ एस, उस से टीपो, ठीक है ना। याद रखने का तरीका, कोई होर बनाना तुसी होर बना लियो। ओ एस, उस से टीपो, उस से टीपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, पोलोनियम। देन असी नेक्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ठीक है ना, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। लास्ट एलिमेंट जो लास्ट ग्रुप च है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेनॉन। हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। कुछ भी समझ लगे ने, जिस तरीके ਨਾਲ समझ लगे उस हिसाब ਨਾਲ बना लो। तो देखो साडे ये ग्रुप असी किन्ने होए 6, इधर होए 2, 8 ग्रुप होए। सेंटर च साडे कोल इत्थे 10 ग्रुप है तो टोटल 18 ग्रुप है। तो असी सेंटर वाले जिहड़े ग्रुप्स है ना उन्होंने नीचे नू स्टडी नहीं करते, उन्होंने स्टडी करन दे लई असी स्टडी करते हैं साइड ते, उन्होंने स्टडी करते हैं साइड तो साइड तो स्टडी रहेगा स्कैंडियम, स्कैंडियम, थैलियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मतलब याद रखो साइंस टीचर वनीता कुमारी, मैडम फेविकोल को, ठीक है ना। साइंस टीचर वनीता कुमारी, मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब। थोड़ा सा बनता नहीं है, चलो बना लो, ठीक है। नेक्स्ट यटेरियम, यर्कोनियम, नमेडियम, मोलिब्डियम, टलीसियम, रुबीडियम, सिल्वर एंड। ਇਹਦਾ मतलब बनाया सी यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक। रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाओ। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाओ। मतलब ये देखो इस जगह तक जिहड़े एलीमेंट्स है, इस तो बाद ये वाला एक लाइन ये भी पूरी है जिहड़ी कि इंसान ने हुण तक खोज के बना ली।
तो इनू याद रखने के लिए असी इस तरीके बना लिया ल हफ्ता ला हफ्ता ला हफ्ता वरना रे ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके नाल 80 एलीमेंट होने तक असी देखो ये स्टडी कर लिया इत्थे 80 तो बाद इत्थे 86 तो 86 87 88 88 एलीमेंट्स का कोई ना कोई फार्मूला इस तरीके नाल बना के जड़ा याद हो जाता। इस तो नैक्सट मैं क्यों नहीं कह रहा बिकॉज जी नैक्सट लाइन है बेटा ये सारी रेडियो एक्टिव है और ये एलीमेंट अभी सीरीज़ कंप्लीट नहीं है पूरी नहीं है और ये हजे टोटल फाइंड नहीं है। इंसान ने अपने कोलों रेडियो एक्टिव एलीमेंट बना रखे हैं और ये अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना। तो असी इत्थे तक दे अपने फार्मूला कोई ना कोई बना के कर लिया। सुनो आगे एक बात नीचे भी कुछ ना कुछ दो सीरीज़ तुसीं 10वीं तक पढ़ रखियां होणगियां दो सीरीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 एलीमेंट्स ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥेनाइड बोल ਦਿੰਦੇ ਆ एक एक्टेनाइड सीरीज़ है ये भी 14 एलीमेंट्स पाए जाएंगे इत्थे भी 14 लेकिन ये सारे एलीमेंट्स नीचे नहीं है एक्चुअली नीचे नहीं रखने सी ये कित्थे रखने सीगे ये इन्हां जगह के उत्ते इत्थे जाके साडे कोल पाए जाने सी ये वाले जिथे ਲੈਂਥेनाइड आ रहा ना ਲੈਂਥेनाइड LA इत्थे एक्टेनाइड आ रहा ये ਲੈਂਥेनाइड सारे के सारे 14 एलीमेंट पहली लाइन इत्थे रहणगे 57 तो अगे 58 तो लैके सारे अगे तक दैन ये 89 तो अगे सारे एलीमेंट्स वो एक डब्बे के ही पाए जाते मतलब ये सारे एलीमेंट्स ਲੈਂਥेनाइड वो इस ग्रुप के इस डब्बे के पाए जाते हैं मतलब कि ਉਹਦੇ गुण इस जगह के नाल सारे मिलते जुलते लेकिन इत्थे जगह घट अगर इत्थे इनू रख दें तो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाना सीगा तो मतलब इत्थों चक के असी नीचे रख दिता ਜਾਂ इत्थों एक्टेनाइड चक के नीचे रख देते इत्थों ਲੈਂਥेनाइड चक के नीचे रख देते ये सारे एलीमेंट इस तरीके नाल रखे गए और इन्हां दे एलीमेंट्स जिहड़े है इस तरीके नाल जिहड़े अगर तुसीं भरो तो इन्हां नूं याद रखण दे लई एक सीरीज़ तुहानूं करा देना अगे मैं चलदा सीने पर नदियाँ प्रेम की समाए सीने पर नदियाँ प्रेम की समाए यूं ही गड़गड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है ना। कोई ना कोई टोटका जा बना लो याद करन दा ताकि ये 14 एलीमेंट सानू सिस्टमैटिकली सीरीज़ च याद रहन। ठीक है ना। तो इस तरीके नाल जिन्ने भी एलीमेंट्स ने सीरीज़ के टोटके बनाए गए याद रखने लिए किए गए ये एलीमेंट्स तुसी अगर ध्यान नाल इस वीडियो नूं सुनो तो तुसी फार्मूला याद रखो एलीमेंट्स का सिंबल याद रखो तो सारे सिंबल तुहानूं जिहड़े है याद हो जाएंगे। बाकी मेरा ये काम है तुहानूं मैं इन्हां दे एटॉमिक नंबर किवें याद कराने आ इन्हां दी अगे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्हां दे बाकी सारे गुण किवें याद कराने आ वो बाद दी गल है। सब तो पहलां तो सानूं एलीमेंट तो नाम तो याद रहने भी उन्होंने नाम क्या है। ठीक है ना। इस तरीके नाल असी बेटा एलीमेंट का नाम याद रख सकते हैं। असी अगे चलते हैं ज़्यादा लंबा हो गया 18 तो ग्रुप हो गए 7 पीरियड होंगे 7 पीरियड्स होंगे और 7 पीरियड्स ये उपरों नीचे नहीं नीचे तो लेटवियां लाइना ये पहला पीरियड है जिहदे सिर्फ दो ही एलीमेंट आ रहे हैं एक पहला एक आखिरी दूसरा पीरियड इस तरह इधर जावांगे ये 2 तो 6 8 एलीमेंट आ रहे हैं तीसरा पीरियड भी 8 एलीमेंट आ रहे हैं 2 8 8 ठीक है ना। चौथे पीरियड के ये वाले भी येलो वाले एलीमेंट्स भी आ गए इसका मतलब चौथे पीरियड से 10 जोड़े ये एलीमेंट्स है ना वो उपरों शुरू नहीं होंगे नीचों जाके शुरू हो रहे पीरियडिक टेबल असीं पहलां भी देख लिया। तो चौथे एलीमेंट्स जोड़े एलीमेंट की गिनती बढ़ जाएगी ये 8 तो प्लस 10 18 पहले पीरियड के 2 एलीमेंट दूसरे पीरियड के 8 तीसरे पीरियड के फिर से 8 और चौथे पीरियड से 18 एलीमेंट हो जाएंगे। इस तरीके नाल पंजवें पीरियड के भी 18 एलीमेंट्स रहणगे बट 6वें पीरियड के और 7वें पीरियड के मैं बोलिया है कि 17 एलीमेंट्स इत्थे बैठे ने तो सॉरी 14 एलीमेंट जिहड़े नीचे वाले सी वो 14 एलीमेंट इत्थे और 14 एलीमेंट इत्थे बैठे सीगे मतलब टोटल 18 प्लस 14 ये 32 एलीमेंट्स जिहड़े बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मतलब पंजवीं सीरीज़ तक ये दो चौथी तो पंजवीं ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 2। 7वां पीरियड फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना। तो ये नीचे वाले एलीमेंट ये किसी पीरियड के अंदर नहीं आते एक्चुअली ये इन्हां पोजीशनों के ही बैठे हुए हैं। ठीक है ना। ये नीचे वाले हरे एलीमेंट्स ਲੈਂਥੇਨਮ तो एक्टिनम इन्हां दे जगह के ही बैठे हुए हैं मतलब कि ये वाली जी सीरीज़ है ਲੈਂਥੇਨਾइड इसका पीरियड 6वां हो गया जी ये एक्टिनाइड सीरीज़ है इनू एक्टिनाइड सीरीज़ बोलते हैं
ਉਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 7ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, 18 ਇਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, 7 ਇਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਪੜੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, 18 ਗਰੁੱਪ ਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ठीक है ना। 18 ऊपरों नीचे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स हैं, देन 4 ब्लॉक भी है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक है। ब्लॉक मीन टू से एस ब्लॉक, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एस ब्लॉक ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एस ब्लॉक ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਸ ਬਲੌਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਸ ਘਰ, ਪੀ ਘਰ, ਡੀ ਘਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਬਲੌਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ये है जी पी ब्लॉक, ये 2 लाइना एस ब्लॉक, 6 लाइना पी ब्लॉक, सेंटर च ये पीला वाला सारा डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। एस पी डी एंड एफ जो पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक के अंदर वंडिया होया। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड, 18 ग्रुप ते 4 ब्लॉक्स रहणगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीरियोडिक टेबल के हुण तक जो तुसीं पढ़ ले, एक छोटा सा तुहाडा मैं टेस्ट भी लेना आ, अभी ध्यान नाल सुनो। द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल 2 एलीमेंट, फर्स्ट पीरियड चाही जिहड़ा फर्स्ट पीरियड सीगा उहदे विच सिर्फ 2 एलीमेंट ही सीगे। द रिमेनिंग पीरियड बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8, ਦੂਜੇ 'ਚ 8, ਤੀਜੇ 'ਚ 8, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ 18 18 और छेवें 'ਚ 32 एलीमेंट ਸੀਗੇ। 7ਵਾਂ पीरियड अभी कंप्लीट नहीं आ, हजे तुसीं वड्डे हो के उसकी खोज करनी आ, उत्थे एलीमेंट होर लिया के रखने हैं, ठीक है ना। तो 7वां पीरियड साडा कंप्लीट नहीं है। देन द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 14 एलीमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th, कहते जिहड़े थल्ले असी 14 एलीमेंट्स रखे ही ना, वो 6वें ते 7वें पीरियड के ही मैंबर है, ਜਿਹੜੇ कि ਲੈਂਥेनाइड ਤੇ एक्टिनाइड के नाम नाल जाने जाते हैं, ਜਿਹੜੇ नीचे असी हरे ब्लॉक के विच 2 ग्रुप रखे सी। पहला दूजा ग्रुप 13 तो 18 ग्रुप एलीमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। लर्न ग्रुप वाइज पहले दूजे नूं कहते याद करना है। हुण तुहानूं होमवर्क दे रहे हैं, जिहड़े पहले 2 लाइनां पढ़ियां ना उन्होंने ग्रुप वाइज याद करना, फिर 13वें तो 18वां तक जिहड़े लास्ट वाले 13 तो 18 तक एलीमेंट्स इन्हां नूं ग्रुप वाइज पढ़ो तो याद करो, उन्हां दा एटॉमिक नंबर जिहड़ा वो देखो तो कन्फिगरेशन देखो। 18 ग्रुप तुसीं इस तरीके नाल ये पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैमोराइज करके एक छोटा सा टैसट लेना तुहाडा मैं। 18 ग्रुप के विचों सब तो पहला ग्रुप, दूजा ग्रुप, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, 8वां और फिर उस तो बाद ये 10 ग्रुप जिहड़े है सेंटर 'च आ रहे हैं। और ये 10 ग्रुप्स टोटल मिला के 18 ग्रुप, ये किसी ग्रुप 'च नहीं है, ये एलीमेंट्स लेंथेनाइड इस बॉक्स के अंदर आने सारे मैंबर, एक्टिनाइड इस बॉक्स के अंदर आएंगे सारे। तो इन्होंने नीचे रखने का कारण की सीगा, इस बॉक्स 'च इन्होंने पूरा नहीं रखा जा सकता, इस करके नीचे रख लिया गया। ओके, तो 18 ग्रुप्स एटॉमिक नंबर ये जिहड़े सी लिखे इन्हां दे, ये सारे का सारा जिहड़ा येलो ग्रुप है इन्हों असी डी ब्लॉक एलीमेंट कह दें। असी हुणे पढ़िया सीगा, ये एस ब्लॉक एलीमेंट है, ये पी ब्लॉक एलीमेंट है, ये डी ब्लॉक एलीमेंट है और ये एफ ब्लॉक एलीमेंट कह दें। असी इस तरह क्यों कहने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तुहानूं कि असी डी ब्लॉक नूं डी ब्लॉक एलीमेंट क्यों कहने हाँ, एस नूं एस ब्लॉक क्यों कहने हाँ। आंसर ये आ क्योंकि जिस ब्लॉक दे विच जदों असी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं किसी एलीमेंट की, इलैक्ट्रॉनां की वंड करते हैं कि किहड़े घर च किन्ने इलैक्ट्रॉन आउणगे, तो लास्ट इलैक्ट्रॉन जिहड़े ब्लॉक च जाएगा, ओनली लास्ट इलैक्ट्रॉन जिस ब्लॉक ते जाके खत्म होएगा वो एलीमेंट उस ब्लॉक का ही होएगा।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਐਫ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈंट्स। ओके, ये सारे हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये वाला है साढ़े कोल पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये वाले है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वेरी सिंपल है, एस पी डी एफ चार ही तो ब्लॉक है, ठीक है ना, चार ही याद रखने हैं। बट असी यही सीखना है कि इनू एस क्यों कहने, पी क्यों कहने, डी क्यों कहने, एफ क्यों कहने। इनू असी जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करांगे ना, उत्थे तुहानू डिटेल ना पता लग जाएगा कि ये मैं इस तरीके नाल क्यों कह रहा सी। आगे चलते हैं जी। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਕਰੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 8 ਸੀ, ਫਿਰ 8 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3D ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 3D ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3D ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। फिर जी नैक्सट सीरीज़ है वो है जी 4D सीरीज़, और नैक्सट वन इज़ 5D सीरीज़, और 6वीं सीरीज़ जी 6D सीरीज़ है वो इनकम्पलीट है। 6D सीरीज़ 7वें पीरियड च है। तो मतलब जो डी ब्लॉक एलीमेंट्स है इन्हों डी सीरीज़ के नाम नाल भी जाने जाता है। ये कितों शुरू होंदियां हन, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। डी सीरीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इत्थे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3D ਤੀਸਰੇ 3rd D ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3D ਕੀ ਹੈ, 4D ਕੀ ਹੈ, 5D ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और नीचे वाले ਜਿਹੜੇ एलिमेंट्स है इन्हों असी पहली लाइन में बोलते हैं 4F सीरीज़ का। अभी जानना इसमें हमेशा याद रखना, पहली लाइन है 4F सीरीज़, तो दूसरी लाइन जी है वो है 5F सीरीज़। ओके, तो असी इस स्लाइड की देखा, ये है 3D सीरीज़, 4D, 5D, 6D, दैन इतने D नहीं है, ग्रीन वाली लाइन 4F एंड 5F सीरीज़। इस सीरीज़ के नाल इसनों इस तरीके नाल पढ़िया। नैक्सट हूँ थोड़ा सा देखो, जवाब दिओ जरा। हाउ मैनी नंबर ऑफ एलीमेंट प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेटा जी ऑप्शन अगर तुहानू ये दे दी जाए तो किन्ने एलीमेंट पाए गए अज तक जो हुण पीरियोडिक टेबल। वेरी गुड, 114, वेरी गुड, अवेलेबल। नंबर ऑफ पीरियड एंड नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड ते ग्रुप किन्ने किन्ने सीगे, 7 18 18 7। हाँ जी, नंबर ऑफ पहला देखो, हाँ बेटा देखो इतने सॉरी पहला क्वेश्चन सुनो, नंबर ऑफ पीरियड पहला पीरियड देखना। हाँ हाँ, नंबर ऑफ पीरियड 7 18 तो आंसर करैक्ट रहेगा, क्योंकि 7 पीरियड हॉरिजेंटली है, तो 18 ग्रुप जोड़े है वो पीरियड। देन थर्ड क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। शॉर्टेस्ट पीरियड केड़ा है, सब तो छोटा पीरियड केड़ा है, केड़ा पढ़िया जी, फर्स्ट पीरियड। वेरी गुड, वेरी गुड, फर्स्ट पीरियड। चौथा क्वेश्चन है, एक्टिनाइड आर प्लेस्ड, ਜਿਹੜੇ एक्टिनाइड एलीमेंट ਸੀਗੇ 4F सीरीज वाले वो कितने है, वो अबव पीरियोडिक टेबल के ऊपर पे या नीचे पे या मिडल च पे या कि नन, केड़ा रहेगा, बिलो, बिलो, गुड, बिलो। एक मिनट रहिंदा साडा जूम खत्म हो जाएगी बेटा। लेंथेनाइट, सॉरी,
हाँ जी। तो चलो बेटा जिन्ने बच्चे आए ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਲੈਂਥेनाइड ਆਰ ਫਰੋਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਲੈਂਥेनाइड ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੈਂਥेनाइड ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ 57 ਤੱਕ 57ਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥेनम ਸੀਗਾ 58 ਤੋਂ 71। ਜਿਹੜੀ 4F ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ 58 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਲੈਸਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਘੁਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਕਦੀ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਲੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਘੋਲ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਨ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨ ਓਨਲੀ ਸ਼ੋ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਉਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। दूसरे कोई सोल्यूशन कंडक्टिविटी शो नहीं करनगे। फिर कहते ਅਸੀਂ उस सोल्यूशन ਨੂੰ कंडक्टिविटी करना है तो क्या करें? तो कंडक्टिविटी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ अमाउंट ऑफ सल्यूट ਅਸੀਂ इनक्रीज वह नमक मिला दो, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਮਿਲਾਓਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो इफ सोल्यूशन इज एवेपोरेटेड, दूसरी गल ये आ कि कंडक्टर सोल्यूशन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲੋਗੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਤਰਾ ਨਮਕ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਓਕੇ। तो बेटा हुण इन्ना कुछ सीगा अपना कि जस्ट आपां पिछला फ्लैशबैक ते आपां स्टार्ट करके देखिया है केमिस्ट्री का टॉपिक। आपां एक दो दिन दे अंदर ही स्टार्ट करना है अपना पहला लैसन बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस तो पहला असीं जिहड़ा है दो के लैसन होर आपां इस तरीके नाल लवांगे जूम मीटिंग। तो बेटा एक क्वेश्चन सीगा कि एक ना बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज है कि करैक्शन तुहाडे किसी दे बच्चे दे नाम फादर दे नाम गलत हैं, किसी के जो भी पिछों डाटा कुछ गलत है ना जी लिस्ट कल शो की सी। तो बेटा जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ। तो कई बार उसकी फीस भी लग जाती है, 100-200 रुपये कई बार फीस भी लग जाती है जी कि तू एजुकेशन डिपार्टमेंट तो रसीद कटा के मिलती है। तो वो करैक्शन होंगी आ। वो कालम जोड़े लॉक कॉलम होंगे उन्होंने असी अपनी मर्जी नाल असी चेंज नहीं कर सकते। अगर असी कर सकते होंगे तो असी बड़े आराम नाल कर देने से, ठीक है ना। कई बच्चों के आ रहे कि मेरे फादर का नेम गलत है या मेरी मदर का नेम गलत है या कुछ भी है। तो उस तरह बेटा वो करैक्शन जी है तुसी अगर किसी की कमी है तो मैनू स्कूल च आकर मिलना, वो आपां ठीक कर लाँगे। तो ठीक है जी बेटा, बाकी सिलेबस की मैं तुहानू एक PDF सेंड करदा। PDF तुसी एक बारी जरूर देख लेना, अपना संभाल के रख लेना क्योंकि बार बार असी उस PDF की सिलेबस की गल नहीं करांगे।
ਹਰ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੈਸਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੀਡੀਐਫ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਓਕੇ, थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी बेटा, किसी ने क्वेश्चन करना, बोलो। सर सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, फिर मैंने तो फॉर्म में सिर्फ नेहा ही भरा था। नेहा ही भरा था तो, लेकिन नाम क्या आया? सर नेहा स्वरन आया। हाँ, नेहा स्वरण जो है, पहले पिछली क्लास से नेहा स्वरण सीगा। सर मैं तो अभी आई हूँ न्यू स्टूडेंट, पिछले स्कूल में भी सिर्फ नेहा ही था। बेटा फिर ये नेहा तेरा फादर नेम जो है, मतलब वो ठीक है, नेहा स्वरण के आगे जो लिखा है ठीक है, हाँ जी। मतलब जो स्वरण आया ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सिस्टम ने, मैं कह रहा भी चक लिया भी, तू नहीं स्वरण नहीं है ना कोई भी इस तरह का? सर स्वरन में डालती नहीं, पर आधार कार्ड पर है। हाँ बेटा, यही बात है ना, तू आधार कार्ड ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਵਰਨ, ਜੋ ਸਬ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੌਕ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो कोई नहीं, वो हो जाएगा, मेरे को स्कूल आया ना एक बार, एप्लीकेशन प्रिंसिपल तो लैके मेरे को आना, मैं उसको फॉरवर्ड करांगा तो हो जाएगा। और बेटा कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, ओके गुड डन। तुसी सारे जने म्यूट करो अपने आप नू, सर लीव एक कर। और बात। हाँ जी हाँ जी, बोलो सर बोलो। आपने कहा था कि आप प्रदीप बुक प्रोवाइड करोगे, बेटा पर पता क्या है, सर तू नेहा, नेहा है ना, है ना? सर ये हाँ बेटा नेहा, पता क्या, जो व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप मेरे को पता नहीं कौन नेहा है, तो मेरे को पता है मैंने कई बच्चों को बोला था और कई बच्चे ले गए, और मेरे को नहीं पता भी मेरे को अभी व्हाट्सएप पर कौन कॉल कर रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को आके मिलना, तेरे को प्रदीप बुक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कब आओगे? मंडे? सर मंडे या ट्यूसडे को आ जाएंगे। हाँ मंडे या ट्यूज़ को, मंडे या ट्यूसडे को आ जाओगे, ठीक है। अगर मैं मंडे लेके जाऊंगा, कोई मेरे से बुक ले मांगेगा ना, तो मैं उसको दे दूंगा, ठीक है ना। कोई परफेक्ट डे बता दो, कोई ना कोई आके बेटा बुक्स मांग ही लेते हैं। मंडे आओगे कि ट्यूसडे आओगे? सर मंडे देख लेंगे ठीक है सर, मंडे, क्योंकि वो फॉर्म भी देना है नेम वाला। ठीक है तो ठीक है जी, मैं मंडे लेके आऊँगा बेटा आपका ना, प्रदीप लेके आनी है, ठीक है बुक। हाँ ले आऊँगा बेटा, ओके आ सर, जाना बेटा, कोई नहीं, डोंट वरी। थैंक यू सर। और बेटा कुछ क्वेश्चन? सर नो सर। ओके बेटा, थैंक यू, लीव कर लेना अपने आप को।